Hello guys, I am Supriya Gupta and I am from Medical College Kolkata, pre-final MBBS student, and I welcome you all to the series View Under the Microscope, okay, which is brought to you by the Make Medical Easy. And today I will be discussing the ID points of the slides, okay, and how to identify the slide under the microscope, and this will be enough to give you an idea about the histology slides, and it will be helpful for you in the practical exams also. Okay, so just uh, concentrate. Okay, now फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेन हम यूज़ करते हैं हिस्टोलॉजी में, दैट इज़ द हिमाटॉक्सिलिन एंड योसिन स्टेन. हिमाटॉक्सिलिन कंपोनेंट जो है हमारा, दैट इज़ बेसिक, and the eosin component is acidic, and hence they will stain the opposite part, that is hematoxylin will stain the acidic nucleus in blue purple. Okay, and the eosin, which is acidic in nature, it will stain the basic cytoplasm pink in color. Okay, now first of all, this video completely will be based on the epithelial cells. Okay, तो epithelial cells की properties हम लोग जानेंगे अब. First of all, they are all very tightly adherent to each other and they form sheets. They are completely present as sheet. Two properties. First is they are avascular, no blood supply, but they are very rich and innervated by the nerves. Okay, they all lie in the basement membrane, and this basement membrane is acellular and it is semi-permeable. Now, classification of the epithelial tissue. If we are talking about the classification of the epithelial tissue is further divided into simple, compound and transitional. The simple जो होगा हमारा, सिंपल क्यों कहते हैं? अब देखो, यहाँ से सारा का सारा नोमेनक्लेचर का खेल है. सिंपल जहाँ जहाँ आएगा, जस्ट इमेजिन एक चीज़ की इट इज़ सिंगल लेयर्ड. Compound means multi-layered. Transitional is a different kind of epithelium. Okay, that is also multi-layered. Simple is further divided into simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, and pseudostratified. Compound is further divided into stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar. Now coming to सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल का मतलब तो आप लोग को पता ही है, सिंगल लेयर. बट स्क्वामस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? अब यहाँ से स्क्वामस, क्यूबॉइडल और एपिथेली जो कोलमनर आएगा, जस्ट दो चीज़, एक है उनका लेंथ ब्रेथ और दूसरा है उनका न्यूक्लियस. इस पर ध्यान देना. ठीक है, स्क्वामस में क्या होगा? they will be flattened cells if you are seeing in a cross section, and when you are seeing from the surface like this, तो वो हमारे polygonal दिखेंगे in the shape. The nucleus will be oval and be flattened. Okay, function इसका बहुत important होता है, that is exchange. Whenever squamous epithelium is there, this is exchange in gases, exchange in substances, or osmosis. Now the viva questions that will be asked in these epitheliums, I will discuss them in details. Okay, जब भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में आपको पूछा जाता है, देन रिमेंबर दिस इन 3 डिफरेंट सब ग्रुप्स. ओके, पहला ब्लड रिलेटेड में हार्ट, द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का रिलेटिव लिम्फेटिक्स. ओके, here the simple squamous epithelium is known as a special name, that is endothelium. Okay, endothelium. Just try and speak with me so that when क्योंकि एग्जामिनर जब वाइवा में पूछते हैं ना, वी आर लाइक स्टैमरिंग एंड वी डोंट रिमेंबर. वो सिंपल था, वो स्ट्रेटिफाइड था, वो स्क्वामस था, वो क्यूबॉइडल था. दे आर सो कंफ्यूजिंग नेम. ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट ट्राई एंड just speak with me. Okay, now second thing that you will remember, they are present in the serous membrane of the body cavities. ठीक है, body cavities like pleura, pericardium, peritoneum. Okay, here they are called as mesothelium. Now they are also present in the lung alveoli for the exchange of gases, renal corpuscles for ultrafiltration, tubules of the kidney, and at certain places, and also on the inner aspect of the tympanic membrane. Now
कमिंग टू आइडेंटिफिकेशन, सो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन स्लाइड में आओ तो जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं पहले, उनसे आप पहले ट्राई एंड आइडेंटिफाई इट, ओके, एंड देन play the video and see if you are identifying it correctly or not. This will definitely help you, okay, this will increase your learning capacity. Now see here, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई किया है एज अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देन यू आर करेक्ट. दिस इज अ सेल, दिस इज अ स्क्वामस सेल, फ्लैटेंड है, यू सी दिस इज सो फ्लैटेंड, ब्रेथ तो एकदम बहुत लंबा है, हाइट बिल्कुल नहीं है, एंड see the nucleus, they are so flattened and oval. How to draw it, okay, we are here to give you an overview कि आपको अपनी histology practical file में कैसे draw करना है, but just draw it yourself so that you get it for a better understanding आपको होगी इसकी. When you will see from the surface it will be like polygonal, when you are seeing as a cross section you will see flattened cells, okay. Now simple cuboidal epithelium, simple मतलब सिंगल लेयर क्यूबॉइडल. आई टोल्ड यू ना लेंथ ब्रेथ सेम, देव लेंथ ब्रेथ यहाँ पे सेम होगा, एंड द न्यूक्लियाई विल बी राउंड एंड दे विल बी सेंट्रली प्लेस्ड. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. अगर ये मान लो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड दीज अदर सेल्स, और अगर मान लो कि ये लेवल है न्यूक्लियस का सारे सेल्स में, तो दे विल बी इन द सेम लेवल, ओके. फंक्शन विल बी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. नाउ वाइवा विल बी कहाँ मिलते हैं, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए. जस्ट रिमेंबर इज लाइक दिस, ओवरी, ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ पर, सी थायराइड, फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड, ओके, एक्सोक्रीन ग्लैंड के डक्ट्स, पिगमेंट एपिथेलियम ऑफ द रेटिना RPE एंड लेंस कैप्सूल, एंड देन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, ओके. नाउ कमिंग टू द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में just at first you will have to identify the basal membrane, okay. Go for the basal membrane. This is the basal membrane, you see. Now see how many layers, single layer. What is the shape of the cell? See, somewhat like this. This is cuboidal and the nucleus will be oval, round, okay. So this is single layer of cuboidal epithelium. Now I would suggest you draw like this, okay. Now हाँ, और एक चीज़, whenever you are drawing a histology slide, just draw it in a circular view, because when you are seeing the histology slide from the microscope it will be visible as a circular view, okay. तो हमेशा सर्कुलर व्यू आप प्रेफर करो, वरना हिस्टोलॉजी में मैम हो सकता है कि फ़ाइल आपकी काट दे और आपको वापस से मेहनत करनी पड़े, जो हम लोगों को बहुत करनी पड़ी है. नाउ कमिंग टू द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, तो सिंपल मीन्स सिंगल. नाउ कोलमनर सेल्स आर लाइक दिस, ओके. द हाइट इज ग्रेटर देन द ब्रेथ. एपिकल सरफेस जो होता है यहाँ पे स्पेशल फीचर्स दिखा सकता है आपको, आइदर दे हैव सीलिया और दे हैव माइक्रोविलाई, ओके. द न्यूक्लियस विल बी इलोंगेटेड एंड दे विल बी प्रेजेंट इन द basal part, okay. All the nuclei will be placed at the same level in the neighboring cells. Like अगर ये basal membrane है तो सारे nucleus same level पे होंगे, like in cuboidal epithelium. Now they can also contain goblet cells. Goblet cells are the mucin producing cells जो कि बिल्कुल स्टेन नहीं लेते हेमाटोक्सिलिन और मियोसिन का, एंड दे एकदम स्टैंड आउट करते हैं और आपको एकदम पक्का से पता चल जाएगा कि ये गॉबलेट सेल्स होंगे. सो फंक्शन विल बी सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, और अगर सीलिएटेड हुआ देन प्रोपल्शन ऑल्सो. ओवरव्यू ऑफ द साइट्स अगर हम लोग देखेंगे, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम. Then this is the uterus, the fallopian tube or the oviducts, the papillary duct of the kidney, the gallbladder. Now simple columnar with cilia. I have further divided this simple columnar epithelium into containing cilia and those who are containing microvilli. जो सीलिया कंटेन कर रहे हैं, सीलिया का बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि वो बीट करता है एक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से सिक्रीशन जो उसके ऊपर लगे होंगे दे विल बी गोइंग टू वन डायरेक्शन एंड हेंस दे विल बी ड्रेनिंग,
ठीक है, टू प्रोपेल द सिक्रीशन इनटू वन डायरेक्शन सो दैट दे ड्रेन। तो या तो वो सिक्रीशन को ड्रेन करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर ओवम जो कि ओवरी से हमारे यूट्रस में आ रहा है उसको हेल्प करेगा आने में। तो अब आप कॉमन सेंस से बताओ कि कहाँ हो सकता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फैलोपियन, इट इज़ प्रेजेंट इन द यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब आप जानते हो मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है नेज़ोफेरिंग से, ताकि मिडिल ईयर की जितने भी सिक्रीशन हो सके वो नेज़ोफेरिंग में आके ड्रेन हो सके, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन विच कंटेन CSF। नाउ सिंपल कोलमनर विथ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? दीज आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से दे हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया सो मच दैट एब्जॉर्प्शन में इतना हेल्प होगा कि इट विल बी एकदम अनइमेजिनेबल। ओके, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन, द बाइल को कंसंट्रेट करने के लिए गॉल ब्लैडर। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमारा प्यारा बेसल मेम्ब्रेन। आइडेंटिफाई द सेल का शेप and single layer of the nucleus. They are all present in the same layer. See, same. Here I told you my favorite goblet cells stand out कर जाते हैं एकदम non-stained. Okay. Now to different. Now how to draw this? I would suggest you draw like this. Okay, in a circular view. So basal membrane, the cells, and the cilia. Pseudostratified columnar epithelium, इसका एक्सप्लेनेशन ही ऐसा है कि pseudo means false, stratified means multi-layer. They are single layer but they look multi-layer, इसीलिए falsely multi-layered. They are single cells, single layer of cells. Okay, but ये multi-layer में दिखते क्यों है? मान लो एक सेल यहाँ है, एक सेल ऐसा है, इसी दूसरे दोनों का शेप अलग अलग है। तो अगर शेप अलग है तो न्यूक्लियस का पोजीशन भी अलग अलग होगा। अगर न्यूक्लियस का पोजीशन अलग अलग होगा तो हम लोगों को ऐसा विजुअल कंफ्यूजन होगा कि दे आर इन डिफरेंट लेयर, बट इफ़ वी आर सीइंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेल दे विल बी ऑल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम बेसल मेम्ब्रेन। ओके, सो nuclei will be at 2 or more levels, variable shape and height, and all will be resting on the same basal membrane. Okay, they can be ciliated, non-ciliated, and they can contain goblet cells. Goblet cells हमारा favorite. Function will be protection of the underlying tissue, and ciliary movement होगा तो क्या होगा? Removal of the surface, ठीक है, from the mucus, from the foreign body. Now coming to the vulva part, non-ciliated epithelium is found कहाँ पे? 3 चीज़ आप याद रख लेना, ऑडिटरी ट्यूब, मेल यूरेथ्रा एंड लार्ज एक्सक्रीटरी ट्यूब डक्ट्स। ओके, ciliated stratified columnar epithelium बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये आपके ट्रेकिया वाला जो स्लाइड आएगा उसमें भी हेल्प करेंगे। बिकॉज ट्रेकिया का जब भी स्लाइड आएगा दे विल आस्क यू व्हाट इज़ द लाइनिंग एपिथेलियम। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस कि upper respiratory tract like trachea, bronchus, they all are lined by pseudostratified columnar epithelium. Now identification will be, first you will have to identify the basal membrane and then you will go to, see here कितने सारे लेवल पे हैं हमारे पास न्यूक्लियस, सिंगल लेयर पे तो है ही नहीं ये, है ना। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्ट्रैटिफाइड है या सूडो स्ट्रैटिफाइड है। तो अब देखो ना, आप ना सेल को ट्रेस करना, सेल को ट्रेस करके ना आप पहुँचोगे ना कि सारे के सारे सेल्स ना एक ही बेस में मेम्ब्रेन पे है, और स्ट्रैटिफाइड जो होगा ना बिल्कुल स्टैंड आउट करेगा, एकदम अलग दिखता है वो। ठीक, कंफ्यूजन हो सकता है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दी स्लाइड्स 2 to 3 times एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। ओके, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग स्लाइड्स है। नाउ गॉबलेट सेल्स हमारा फेवरेट। Coming to how to draw it, just draw a basal membrane, the lamina propria, like मशरूम जैसे एकदम प्यारे से इधर उधर जाते हुए सेल्स, बट ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम ग्राउंड लेवल। ओके, नाउ कमिंग टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जब भी मैं स्ट्रैटिफाइड बोलूँ, एक प्रॉपर्टी आप समझ लेना कि इट इज़ मल्टी लेयर्ड। ओके, इट इज़ स्क्वामस और इट इज़ क्यूबॉइडल और इट इज़ कोलमनर। ये सारे के सारे जो नोमेनक्लेचर है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारा एपिकल सेल कौन सा है, बेसल सेल, मिडिल सेल, कुछ भी हो। ठीक है, एपिकल सेल अगर स्क्वामस है देन इट इज़
stratified squamous epithelium. If the apical cells are cuboidal, then it is stratified cuboidal epithelium. If the apical cells are columnar, then it is stratified columnar epithelium. Okay, I won't be explaining this again when I show the different other upcoming slides. Okay, just remember this. So multi-layered apical cells, middle cells and basal cells. Function will be physical barrier. Now stratification का काम ही होता है physical barrier. ठंड लगी, हमने अपने आप को stratify किया with different sweaters, jackets, blankets. So what we are doing is stratification to protect us. Okay, तो stratification function will be physical barrier. कुछ नहीं याद आ रहा है, physical barrier protection. Now stratified squamous is further divided into keratinized, non-keratinized. केराटिनाइज्ड जो होते हैं दे प्रोड्यूस्ड केराटिन. ओके, यहाँ पे जो सरफेस सेल्स होंगे उनका प्रॉपर्टी ये होता है कि दे आर डेड, नो न्यूक्लियस, दे आर फिल्ड विथ स्क्लेरोप्रोटीन दैट इज केराटिन. केराटिन इज अ कोलाजन. ओके, कोलाजन प्रोटीन है वो. लेकिन डीपर लेयर्स में भी हम लोगों को प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ केराटिनाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे पॉलीगोनल सेल्स में. द बेसल सेल्स में कुछ नहीं हो रहा. नाउ द सुपरफिशियल सेल्स बिकम हार्ड एंड कॉर्निफाइड. Why? Because of the wear and tear that they are exposed to, and hence they are also known as keratinized epithelium. And most common site when they are present is skin. Stratified squamous non-keratinized. Non-keratinized का properties different है. They are found in similar places but thinner surface होते हैं. Flat है, nucleated है. याद है वो सब enucleated थे, no nucleus. So these are nucleated. They are non-keratinized, no keratin, and they are less resistant to the water loss क्योंकि keratin नहीं है हमारे पास. Wet cavities को line करते हैं. They are present in the wet cavity lining. Okay, buccal mucosa, tongue, esophagus, then vagina, vocal cords, anal canal, cornea, all of them. Okay, coming to the identification. अगर आप identification देखो हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे slides हैं. So see melanocytes. I will tell you when we come to the skin का slide. melanocytes होते हैं उसमें. Okay, apart from there don't यहाँ पे concentrate मत करो. See here, सबसे नीचे वाला cells दिख रहा है आपको, गोल गोल सा न्यूक्लियस है उसमें. They are most probably either cuboidal or columnar. Okay, जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं these polyhedral cells. See, polyhedral cells हैं, ना cuboidal columnar है ना squamous है. These are polyhedral cells. ऊपर वाले cells are flat. सी कितने फ्लैट सेल्स हैं और सबका न्यूक्लियस भी ऐसा फ्लैट सा है. और अब जब आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस समझ में आ ही गया है, देन अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, ये केराटिनाइज्ड है या नॉन केराटिनाइज्ड है. केराटिनाइजेशन देखने का सबसे इजी है ना कि आप ऊपर का लेयर देखो. यहाँ देखो एकदम डार्क पिंकिश स्ट्रैंड दिख रहे हैं, वो केराटिन है. यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, दिस इज नॉन केराटिनाइज्ड. ओके, दिस इज केराटिनाइज्ड, दिस इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस epithelium. ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ इट. सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड टू शो यू. यहाँ पे तो आप लोगों को ऐसे बनाना है नॉर्मली कि यहाँ पे आपको सबसे नीचे वाला कोलमनर बनाना, उसके बाद आप पॉलीगोनल बनाना, फिर आप स्क्वामस सेल्स बनाने अलग अलग लेयर्स में. एंड यहाँ पे तो मैंने आपको अपनी गलती शेयर की है. आई मेड द केराटिन पर्पल व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर. सो व्हेन इफ़ यू गेट कन्फ्यूज्ड कि केराटिन किस कलर का होता है, पिंक होता है, पर्पल होता है, then just remember my this mistake and go on and do the keratin pink. Okay, okay, now stratified cuboidal epithelium. You know, cuboidal, stratified, multi-layered. Cuboidal means apical cell will be cuboidal. Two or more cells, apical cells will be cuboidal. Function will be conduction of the secretion and protection. कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, protection. Okay, now where to find it? Mind here, I will tell you two things here. Okay, सबसे पहले duct of exocrine gland. ठीक है, ये present होते हैं. exocrine gland के कौन कौन से exocrine gland? Sweat gland, salivary gland, pancreas, exocrine part. Okay, but just note this कि sebaceous gland का duct is not lined by stratified cuboidal, it is lined by stratified squamous epithelium. Okay, do not make this mistake. Now identification feature अगर हम आएंगे तो
जस्ट आइडेंटिफाई द बेसल मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू विल सी 2 लेयर्स में है हमारे पास सेल्स, ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर, एंड सेल का शेप देखो पूरा एकदम क्यूबॉइडल है और इस न्यूक्लियस आर राउंड. सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू ड्रॉ इट. आई सजेस्ट यू कि आप ड्रॉ करना जब भी तो आप इसको 2 लेयर में ही ड्रॉ करना, ठीक है. मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन 2 लेयर, नीचे वाला लेयर क्यूबॉइडल, ऊपर वाला लेयर क्यूबॉइडल. ओके, नाउ कमिंग टू स्ट्रैटिफाइड कोलमनर. तो यहाँ पे 2 और मोर लेयर्स होंगे. Okay, the apical layer will not be cuboidal. Okay, it will be columnar, and the function will be same as stratified protection secretion. Where to find it? Penile urethra and membranous urethra. But कोई hard and fast rule नहीं है कि penile urethra और membranous urethra में हमको stratified columnar ही मिलेगा. It can be pseudo stratified columnar also. Okay, identification very easy. बेसल मेम्ब्रेन, उसके बाद यू विल सी एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स हैं क्योंकि सबके न्यूक्लियस एक लाइन में है, और फिर ऊपर वाला लेयर सी दिस इज कोलमनर. ओके, नीचे वाला बस क्यूबॉइडल, ऊपर वाला इज कोलमनर. ओके, हियर ऑल्सो बेसल मेम्ब्रेन, क्यूबॉइडल्स, कोलमनर्स. हाउ टू ड्रॉ इट. So for drawing you will make a basal membrane, you will make a single layer of cuboidal cells, and then you will make a single layer of columnar cells. Now coming to the last topic of the epithelium layers. तो transitional epithelium. Transitional epithelium का नाम क्यों है transitional epithelium? Okay, because the ये एक तो ये मल्टी लेयर्ड है, ठीक है. आप समझो कि ये मल्टी लेयर्ड है, बट जब ये रिलैक्स्ड होता है और जब ये स्ट्रेच्ड होता है तो इसका जो लेयरिंग होती है उसमें डिफरेंस हो जाता है. जब ये रिलैक्स होता है तो दे आर सो थिक, एंड व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड दे बिकम सो थिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग. दे आर 2 to 3 लेयर्स के हो जाते हैं एकदम से. सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल, बिकॉज द ट्रांजिशन बिटवीन द शेप्स ड्यूरिंग द स्ट्रेच्ड एंड रिलैक्स्ड कंडीशन. नाउ the deeper layer will be polyhedral या फिर cuboidal. Surface will be umbrella और dome shaped cells. ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखो कि stratified में सबसे ऊपर वाले cells were either squamous, columnar और cuboidal. ओके, यहाँ पे जो dome shaped cells या फिर umbrella cells हैं ये completely different दिखते हैं. इसको आप कभी भी अपने दिमाग से निकालना मत. हो सके तो 2-3 बार आप स्लाइड देख लो. ओके, साइट. तो साइट को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है. ट्रांजिशन एपिथेलियम, यू नीड टू गो एंड पी. ओके, फॉर पी यूरिन विल कम. तो यूरिन कहाँ से आएगा? रीनल पेल्विस. स्टार्टिंग फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर, देन प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा. तो ये सारा का सारा यूरिनरी सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लाइंड बाय दिस ट्रांजिशन एपिथेलियम, एंड हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज यूरेथेलियम. ओके, तो अब आइडेंटिफिकेशन में आप आ जाओ. मैंने बोला था ना, जब आप देखोगे ना तो इट इज़ सो डिफरेंट. सी, these are dome shaped cells, these are umbrella like. ठीक है, एकदम umbrella like है. देखो एकदम umbrella like है. तो ये तो बिल्कुल भी स्क्वामस नहीं है, बिल्कुल भी क्यूबॉइडल नहीं है, बिल्कुल भी कोलमनर नहीं है. ओके, तो आप ऐसे करके एक बार अच्छे से देखना. सी कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंट है ये द डोम शेप्ड सेल्स. नाउ व्हेनेवर यू ड्रॉ दिस लाइक दिस कि एक लेयर एकदम कोलमनर, then polyhedrals, and then dome shaped. And to the next slide. So here we interact. So I guess ये सारा का सारा part will almost complete your epithelial part of the histology slides. And अगर इसके बाहर क्वेश्चन आता है देन आई गेस यू आर रियली अनलकी देन, क्योंकि मोस्टली हम लोगों का इससे कंप्लीट हो जाएगा. एंड फर्दर आई होप टू सी यू पीपल सून, एंड टिल देन एक्सप्लोर. And for any further inquiries, if you have about the video or about the my talking style or anything, any query, okay, just email on this, and
We'll try to get to you as soon as possible, and I will also attach this PDF file to the link in the description box. So if you want this, then you can completely download this from there. Okay, so thank you, and have a nice day. And this is Supriya signing.